Hello, dear students. Welcome to day 8 of our daily 5 study question series. अब हम ऑफिशियली एंटर कर रहे हैं वीक 2 में एंड ट्रस्ट मी, अगर आप वीक 1 कंप्लीट कर चुके हो तो आपका डिसिप्लिन नेक्स्ट लेवल का है. नाउ इट्स टाइम टू मेक वीक 2 मच स्ट्रॉन्गर या इवन स्ट्रॉन्गर. Success looks difficult only until you build a habit. आपने अब पीछे 7 दिनों में एक स्ट्रॉन्ग हैबिट बना ली है. अब बस उसको मेंटेन करके रखना है. सिर्फ रोज के 5 क्वेश्चंस एंड बोर्ड्स विल स्टार्ट लुकिंग इजियर एंड इजियर. तो चलिए शुरू करते हैं आज डे 8 के 5 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डे 1. Question 1 is plant growth regulators do not always plant growth. Plant growth regulators हमेशा प्लांट की ग्रोथ को ही नहीं करते. दे इसका हमें एक एग्जाम्पल साइट वन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ अवर स्टेटमेंट एंड मेंशन द एक्शन ऑफ द सेम. तो एग्जाम्पल क्या है? एब्सिसिक एसिड ऑल्सो नोन एज एबीए हार्मोन एंड इट प्रमोट्स एजिंग एंड फॉल एब्सिशन. ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑक्सीजन इज अ प्लांट हार्मोन that promotes cell elongation and it produced by the apical meristem. Apical meristem पे produce होता है. It inhibits the growth of the lateral buds which are present at nodes where leaves attached to the stem. As long as sufficient oxygen is produced by the apical meristem, जब तक apical meristem से sufficient oxygen promote होती है, the lateral buds remains dormant. lateral जो buds हैं वो जो है dormant रहती है, यानी वहां से growth नहीं होती. अब gardener wants to plant in a haze and he is going to become bushier with more branches. Which of the following should we do? उसको क्या करना चाहिए कि उसका प्लांट बुशियर बन जाए? तो क्या करना चाहिए? गार्डनर को कट कर देना चाहिए टिप को जहां पे ऑक्सीजन बन रहा है, जिससे कि वहां की जो है ग्रोथ वो क्या करेगा, क्योंकि वहां पे उसने ऑक्सीजन को कट कर वहां पे स्टेम को कट कर दिया तो वहां का ऑक्सीजन नहीं बनेगा और वो लेटरल बर्ड्स में बनना शुरू हो जाएगा और उनकी ग्रोथ को कराएगा, जिससे धीरे धीरे प्लांट्स क्या हो जाएगा? हमारा बुशियर हो जाएगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम वन प्लांट हार्मोन दैट कंट्रोल डायरेक्शनल ग्रोथ. प्लांट हार्मोन का नाम बताना है जो डायरेक्शनल ग्रोथ को कंट्रोल करता है. द नेम इज ऑक्सिन हार्मोन. बी पार्ट. प्लांट hormones are also referred to as growth regulators and can be controlled by a number of stimuli. Mention one point of difference between the functioning of the animal growth hormone and plant growth hormone regulators with respect to such control. The answer is animal growth hormones cannot promote growth under the influence of the external stimuli such as light, gravity. Light और जबकि हमारा plant growth regulators ये सब चीजों को देखता है. Right? Next question is Hema bought some unripe tomatoes and left half of them in a brown paper bag. आधे उसने brown paper bag में wrap कर दिए and other half is an open tray. आधे जो उसने open tray में छोड़ दिए. After 2 days, she noticed that the tomatoes in the paper bag had ripened, but the ones in the open tray had not. जो पेपर बैग में थे वो राइप हो गए और जो ओपन ट्रे में थे वो राइप नहीं हुए. तो ए पार्ट. What hormone facilitate the ripening of the tomatoes? कौन सा हार्मोन करता है? इथिलीन. And B part. Why did the tomatoes in the paper bag ripen faster? पेपर बैग वाले जो टमाटोज थे वो जल्दी से फास्टली राइपन क्यों हो गई? बिकॉज इथिलीन इज अ गैशियस हार्मोन. इथिलीन एक गैशियस हार्मोन है एंड द पेपर बैग प्रिवेंटेड इट फ्रॉम डिफ्यूजिंग इनटू द एयर. और पेपर बैग ने क्या करा? प्रिवेंट किया उसको डिफ्यूज होने से एयर में. इसलिए पेपर बैग की जो टमाटोज थे वो पहले राइप हो गए. And the last question is, as first line of defense, stress hormone are released in humans. As an equivalent, which hormone is most likely to be released as first line of defense in plants? तो plants में कौन सा हार्मोन है? उसका नाम है ABA, abscisic acid. There have been reports of plant hormones being found in animal bodies even when they are not synthesized by the animals. What can be the most common pathway of entry of such hormones in animals? The most common pathway कौन सा होगा हमारे पास? वही थ्रू फूड. हम जो है प्लांट्स को ले रहे हैं, प्लांट्स के थ्रू वो हार्मोन भी हमारी बॉडी में पहुंच रहे हैं. राइट. ग्रेट जॉब.
डे 8 भी कंप्लीट हो गया। आपका डेली एफर्ट ही आपको टॉपर जोन तक ले जा रहा है। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखो, यही आपकी सुपर पावर है। तो स्टूडेंट्स ये है डे 8 के, मिलते हैं डे 9 के फ्रेश क्वेश्चंस के साथ। अगर ये सीरीज आपको हेल्प कर रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग। थैंक यू।